ओ मेरे नैना विच बाबा नानक आण बसे नैना विच बाबा नानक आण बसे मेरे नैना विच बाबा नानक आण बसे फुल गए मेरे नैना विच बाबा
ਭਾਈ ਹਰੀਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਜੀ, ਜੱਗ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਫਲ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਫਲ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ। ਭਾਈ ਹਰੀਆ ਜੀ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੌ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਨਾ ਜੀ ਭਾਈ ਹਰੀਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਹਰੀਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਸੌਂ ਗਿਆ ਜੀ। ਰਾਤ ਲੰਘੀ, ਸਵੇਰ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰੀਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਦਿੰਦੀ ਏ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ? ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ, ਇੱਕ ਪੋਟਲੀ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਸਮਾਨ ਦੀ। ਤੋ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਉਹ ਪੋਟਲੀ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪੋਟਲੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਖੋਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪੋਟਲੀ ਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਪੋਟਲੀ ਦਾ। ਕੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਪੋਟਲੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪੋਟਲੀ ਵੇਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਮਨ ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਹਰੀਏ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀਆ ਜੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਹਰੀਏ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਸ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮਨ ਉਹਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਭਾਈ ਹਰੀਏ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਪੋਟਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੋਨਾ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਹਰੀਏ ਨੇ ਉਹ ਪੋਟਲੀ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਸੋਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਗਵਾਨੇ, ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਗਵਾਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ, ਹਜੇ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਜੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਹਰੀਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਗਵਾਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਈਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਐਸੇ
मैं बड़े घरां च गया जी। पिछे जे मैं अबोहर दे कोल बल्लूआणे गया तो बल्लूआणे गुरुद्वारा टिब्बा साहब दे विच साडा दीवान सी ते ओहदे प्रधान दे घर विच असीं गए जी। बड़ा गुरमुख घर दे विच गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दा प्रकाश है। दोने समय सेवा करते ने बड़े प्रेम नाल। वो मैनूं कहदा बाबा जी साडे घर विच सवेरे बिना नाते कोई चाह नहीं पींदा। घर दे विच सारे उठ के पहला स्नान करते ने, भावें बच्चा है ते भावें बुढ़ा है। सारे सवेरे स्नान करते ने, सतगुर दी शरण जाते ने, सतगुर दे चरनां च बह के बाणी सुनते ते पढ़ते ने। कहते बाबा जी मैं सवेरे उठ के जदों बाणी पढ़ के हुक्मनामा लैंदा है, सारा परिवार चरनां च बहिंदा है, फिर गुरु साहब नूं भोग लगता है, फिर असीं घर दे विच चाह पींदे। गुरु प्यारी साध संगत, वो गुरमुख परिवार ऐसे भी हुंदे ने कि जेड़े गुरमुख वो कहता बाबा जी कोई काम करना होवे पहला गुरु तो आग्या लईदी है, फिर काम करीदा। ते घर दे विच खुशियां बहुत ने जी। बच्चे आग्याकारी ने, कोई नशा नहीं करते, किसी तरह का कोई जहर नहीं आउंदा घर दे विच। ते बच्चे विदेशों में सैट ने। बापू गुरु साहब की सेवा विच, एक बेटा घर विच है, तो बड़ा सोहना मर्यादित परिवार है। तो भाई हरिया कहता भगवान ने जिहड़ी गल दी समझ ना आवे ना जी, वो गुरु नूं पुछ लेनी चाहिए। भाई हरिया अपनी घरवाली नूं लैके नाल सतगुरां दी शरण गया जी। चरनां विच गया, जाके टेकिया मत्था ते सतगुर अज वेखदे ने, कहंदे हरिया अज सवेरे सवेरे तू किवें आया साडे कोले। तो भाई हरिया ने हथ जोड़ के बेनती की, सच्चे पातशाह मेरी घरवाली ये कहती है कि मैं नहीं कहता, मेरी घरवाली ये कहती है कि रात साडे घर कोई चोर आया सी ते वो चोर ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ कोई पिया होएगा ते वो सोना साडे घर सुट गया। सतगुर हस के भाई हरिये दी घरवाली नूं कहंदे पुत्तर धीए कि तैनूं पक्का यकीन है कोई चोर आया सी? वो घरवाली भाई हरिये दी कहंदी सच्चे पातशाह बिना चोर तो केड़ा आके सुट गया साडे घर सोना। ते भाई हरिये वाल वेख के सतगुर कहंदे हरिया कोई चोर नहीं आया तेरे घर, तू रात बैठा गुरु नानक नाल गल्लां करी जांदा सी, तू रात मंजे ते बैठा गल्लां करी जांदा है। ते सतगुर भाई हरिये दी घरवाली नूं कहंदे ते तू चिंता करदी सौ गई कि मेरी धी दा की बनेगा, इहदा विआह किवें होएगा, इहदे कारज किवें होणगे, साडे तां पल्ले कख नहीं। भाई हरिये नूं कहंदे हरिया तू गल्लां करदा सौ गया, ये चिंता करदी सौ गई। दोनों का ध्यान गुरु नानक विच सी, ओए तेरे घर होर कोई नहीं आया। गुरु नानक त्रुठ गया, दया दे घर विच आया ते गुरु साहब आप तेरे घर आके सोना छड्ड के गए। गुरु प्यारी साध संगत, सतगुर जिथे गुरु दे प्यारे बहिंदे ने ना जी, सतगुर आप उत्थे जाके उन्हां दे कारज करते ने। तो सरदार मनजीत सिंह जी जिन्हां ने अपने सपुत्र दे विआह की खुशी विच, सपुत्र मनीला च जी उत्थे ही है, उत्थे ही है जी। तो बड़ी चंगी गल है, भावें पुत्र विदेशों में बसते ने लेकिन सुमति पुत्र ने कि उन्हां कोले सुमत चंगी है कि वह अपने सतगुर दे शुकराने करते हैं, अपने सतगुर की सेवा करते हैं और सतगुर के चरणों च बार बार अरदासां ने, बेनतियां ने, अरजोइयां ने। सच्चा पातशाह जेड़े तेरी इन्नी सेवा करते हैं उन्हां ते सदा कृपा बना के रखनी। कारज आप अंग संग खड़ के करने दाता जी, बुजुर्गां ते मेरा करनिया, सरदार मनजीत सिंह जी दे पूरे परिवार ते कृपा करनी। जिन्नी संगत गुरु चरनां च बैठी है सारियां संगतां ते सच्चा पातशाह मेरा करनिया। जो संगत सिमरन करती रहे, सेवा करती रहे। और आओ आखिरी पंक्तियां कह के फिर आनंद साहब की बाणी का पाठ करांगे, क्योंकि बंद करने जी तो मेरा करता नहीं है ना, तुहाडा तां नहीं किसी का पकौड़ियां च ध्यान। आखो सतनाम
गुरु मेहर करे जी, खुशियां बनिया रहन। आओ फिर वो पंक्तियां पढ़ दईए। भाई हरिया गुरु दी गल्लां सुन के गुरु चरनां च लिपट गया, कहंदा सच्चा पातशाह जिहदा गुरु समर्थ होवे ना वो जिंदगी दे विच क्यों रोएगा। जिसका साहिब डाडा होए इसको मार ना सके को। गुरु प्यारी साध संगत फिर अपने दाते नूं कहिए सच्चा पातशाह असी भी तेरे ते साडे ते मेहर बनाओ। ओ मेरा सो गुरु प्यारी साध संगत सतगुर मेहरां करन जी, बख्शिशां करन, पूरे परिवार ते मेहर भरिया हथ रखन, परिवार सदा चढ़दी कला विच रहे। और जिन्नियां संगतां ने आके गुरु दर ते सत्संग सुनिया, गुरु की संगत की, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के चरणों च बैठे ने, सारे सुभागे ने। सब नूं बेनतियां करूँगा जी, सिमरन ना छड्डो, बंदगी करते रहो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुसी सिमरन नहीं करना, मैं ये कह रहा कि जे किते रह जाता है वो छड्डना, जे किते काली है तो सिमरन की विधि कोई होर बना लो, क्योंकि आपां नूं बड़ा वधिया मौका दिता है। सुनते हैं गुरबाणी भई प्राप्त मानुक देवरिया, गोविंद मिलन की सतगुर कृपा करन जी, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। सो इन्ने शब्द कहते हुए समा विचारते हुए बाणी नूं विराम दिंदे हां जी। भुलां चुकां दीयां माफियां देणियां जी। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।